It is our chapter motion of class 9 of science. In this chapter, we learned about what is motion, what is rest. If we talk about rest, we simply says that the object is not moving. If the object is not moving, then we can say that it is in rest. But if the surroundings of the object does not change with time, then we can say that object is in rest. If the surroundings of the object change with time, then the object is in motion. Simply is that if you are waiting for someone at any place, then we simply think that we are in rest, but no, that time we are in motion because the surroundings are changing continuously. Now, what is distance? When we are moving from one place to another place, the length of the path which we covered is known as distance. What is displacement? We can say that the shortest length between initial point and the final point of a path is known as displacement. If you are, for example, if you are moving on a circular path and complete a half round of the circular path, then what is the distance? That time the distance is pi r, as because the circumference of the circle is 2 pi r. For the half round, the circumference is pi r. But the displacement is 2r. Why? When you are completing a half round, then you are just completing a straight line, which is equals to the diameter of the circle. So diameter equals to the 2r. For example, in this there is an example given. If a body starts moving in a straight line from origin O and moves through C and B and reaches A, then moves back and reaches C through B, then and what is the distance? As we know that the body start from the O, then go to A, then come back to the B, then come to C. When the object is moving from O to A, it covers a distance of 60 km, and while coming back to C, it covers a distance of 35 km. So the total distance is 60 plus 35, that is 95 km. But what about the displacement? As earlier I told you, the shortest length between initial point and the final point. So the initial point is O and the final point is C. So what is the distance between O and C? 25 km. So the displacement on moving O to A then come back to C, the displacement is 25 km. O से A गए, A से फिर B आए, फिर C आए, तो O और C के बीच में मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम लेंथ रही वो कितने की हमारी 25 किलोमीटर की. तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 25 किलोमीटर. देन यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? इफ़ यू आर कवरिंग एन इक्वल डिस्टेंस in equal interval of time, if you are covering equal distance in equal interval of time, then we can say that the object is in uniform motion. How? For example, if you are moving on a straight path or on a circular path, if you are cover 5 meter of length per second, that means in first second you cover 5 meter, in next second you cover 5 meter, then in next second you cover 5 meter. That means in each second you cover 5 meter of a distance. So we can say that object is in uniform motion. Now non-uniform motion. What is non-uniform motion? Non-uniform motion means if an object covers equal distance in unequal interval of time or covers unequal distance in equal interval of time, then the object is in non-uniform motion. Like that, when you go upward with stairs, when you go upward by stairs, initially your speed is maximum, but initially you cover more distance in less time. But when you are moving goes to upward, when you are moving up to the top of the stairs, you are covering less distance in equal time. That means जब आप नीचे से ऊपर गए तो आपने स्टार्टिंग में जब आप चढ़े तो आपने जल्दी जल्दी डिस्टेंस कवर की, लेकिन जब आप ऊपर पहुंचते जा रहे थे तो आपकी जो डिस्टेंस कवर करने का टाइमिंग था वो बढ़ता चला गया. दैट मीन्स नॉन यूनिफॉर्म मोशन.
Now the next topic is speed. We can say that speed is the ratio of the distance traveled to the time taken to cover that distance. That means speed equals to distance upon time. So the SI unit of speed is meter per second. SI unit of distance is speed is meter per second. Speed is a scalar quantity. So the first of all, what is scalar quantity? Those quantities which have only magnitude, not direction. As we know that distance and speed don't have any direction. Now average speed. Average speed means the total distance with respect to the total time. Like that, when you are moving on when you are traveling in train, the maximum speed of the train is about the 110 km per hour. 100 or 110 km per hour. जैसे हम कभी ट्रेन में जाते हैं तो ट्रेन की जो स्पीड होती है वो 100 से 110 किलोमीटर पर आवर की होती है, 100 to 110 किलोमीटर पर आवर. लेकिन जब उसकी एक जर्नी का हम टाइमिंग देखते हैं तो जो उसकी स्पीड निकल के आती है वो 69 to 69 किलोमीटर पर आवर की आती है. तो जब उसकी स्पीड 90 से 110 के बीच में है तो उसकी जो फिर जो स्पीड निकल के आती है वो 67 to 69 क्यों आती है? उसका रीज़न ही होता है जब आप ट्रेन में मूव करते हो तो ऐसा तो है नहीं कि ट्रेन पूरे जर्नी में एक ही स्पीड से चले. बीच में हॉल्ट्स भी आते हैं, बीच में आपके लाइन क्लियरिंग भी होती है कि लाइन क्लियर नहीं होती तो आउटसाइड खड़ा कर दिया जाता है, आउटर पे खड़ी हो जाती है ट्रेन. तो हॉल्स मिला के या बीच में जो स्पीड कम ज़्यादा हो रही है वो सब मिला के जो एवरेज स्पीड निकल तो टोटल जर्नी में टाइम लगता है तो उसका जब रेशियो निकालते हैं टोटल डिस्टेंस के साथ तो उसको एवरेज स्पीड बोलते हैं. जैसे अगर हम देते हैं कि ए से बी जाने की, ए से बी की जो टोटल डिस्टेंस है वो 1980 किलोमीटर पर आवर की 1980 किलोमीटर है और टोटल टाइम लग रहा है आपका 30 आवर्स. टोटल टाइम लग रहा है आपका 30 आवर्स. तो उसकी जो टोटल स्पीड हो गई, उसकी जो एवरेज स्पीड हुई वो हो गई आपकी 66 किलोमीटर पर आवर. लेकिन अगर मैं देखूँ तो कोई भी ट्रेन इतनी स्लो नहीं चलती है. जो उसकी स्पीड होती है ट्रेन की वो 90 के अप्रॉक्स भी लेते हैं. तो 90 से भी चल रही होगी तो उसका जो टाइमिंग लगना चाहिए था वो अबाउट लगना चाहिए था 22 आवर्स. लेकिन यहाँ कितना लगा 30 आवर्स. उसका रीज़न यही है कि कोई भी ट्रेन सीधा ए से बी नहीं जा रही है, वो बीच में कहीं हॉल्स ले रही है. जैसे हम कहीं घूमने आते हैं तो हम बीच में रेस्ट करने के लिए भी रुकते हैं, लंच ब्रेकफास्ट ये सब करने के लिए रुकते हैं. तो जो टोटल टाइमिंग होती है ए से बी जाने में, चाहे वो आपकी ट्रैवलिंग टाइमिंग हो चाहे आपकी वो रेस्ट की टाइमिंग हो, सभी इंक्लूड हो जाती है उस टोटल टाइम में. डिस्टेंस आपकी वही सेम रहेगी लेकिन टाइम आपका बढ़ जाता है. तो जो एवरेज स्पीड होती है वो नॉर्मल स्पीड से कम होती है. नाउ स्पीड विद डायरेक्शन. अगर हम स्पीड में डायरेक्शन जोड़ दें तो उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी. वेलोसिटी इज वी कैन से दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. अब यहाँ पे क्लियरली बोला गया स्पीड विद डायरेक्शन, यानी कि डायरेक्शन में स्पीड के साथ स्पीड, डायरेक्शन के साथ स्पीड. तो इसको हम बोल सकते हैं, तो जब इसमें डायरेक्शन आ रही है तो इस वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी हो गई? वेक्टर क्वांटिटी. यानी वेक्टर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. अब एवरेज वेलोसिटी का वही सिमिलर हो गया टोटल डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टोटल टाइम. इसके अलावा हम एवरेज वेलोसिटी को बोल सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2. अब रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, इसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन. द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. दैट मीन्स चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. तो चेंज इन वेलोसिटी को आप क्या बोल सकते हो? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी. तो ऐसा यूनिट क्या हो गई एक्सेलरेशन की? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है कि जब आप इक्वल वेलोसिटी इक्वल टाइम में ट्रेवल करते हो, यानी कि इफ़ द चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, then the acceleration is uniform. If the change in velocity does not equal, if the change in velocity is unequal in equal interval of time, then it is non-uniform acceleration. Now graphical representation of motion. ये आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ है. तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपकी स्ट्रेट लाइन जा रही है. तो जब स्ट्रेट लाइन हो दैट मीन यूनिफॉर्म मोशन है. उसका रीजन क्या है कि वो आप अगर ग्राफ को देखें तो उसने पहले 5 सेकंड में 10 मीटर की डिस्टेंस की कवर की, नेक्स्ट 5 सेकंड्स में फिर 10 मीटर की डिस्टेंस कवर की, यानी कि वो हर सेकंड में 10 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है. तो ये क्या हो गया? यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है और डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है, ये स्ट्रेट लाइन है ना, ये स्ट्रेट लाइन
इसका स्लोप हो गई। तो उसका स्लोप जा रहा है, ये कर्व जा रहा है। कर्व का रीजन क्या है कि जैसे उसने पहले 5 सेकंड में डिस्टेंस की 2 मीटर की, अगले 5 सेकंड में उसने डिस्टेंस कवर की है आपकी 6 मीटर की, और नेक्स्ट 5 सेकंड में उसने डिस्टेंस कवर की 8 मीटर की या 6 मीटर की। तो दैट मीन्स पर सेकेंड हर सेकेंड में उसकी जो पर 5 सेकेंड में उसकी डिस्टेंस कवरिंग वो चेंज हो रही है, यानी कि वो हर 5 सेकेंड में अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा हो गया, कर्व हो गया। यानी कि यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन या स्पीड का ग्राफ हमेशा कर्व रहेगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन दिखाता है, और इसके लिए हम क्या निकालेंगे, इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया जो है वो डिस्प्लेसमेंट दिखाता है। अगर आप इसका एरिया निकालते हो तो एरिया आपका डिस्प्लेसमेंट दिखाएगा, और स्लोप निकालते हो यानी कि वेलोसिटी अपॉन टाइम करते हो तो एक्सेलरेशन आएगा। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी का जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, जैसे स्ट्रेट लाइन है ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का हो गया। अब जैसे ये फॉर्मूला है, इफ़ अ बॉडी हुज वेलोसिटी इंक्रीजिंग विद टाइम द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन हैविंग एन इंक्रीजिंग स्लोप, दिस इज बिकॉज वेलोसिटी इंक्रीज बाई इक्वल अमाउंट ऑफ। हाँ, तो वही कि उसकी वेलोसिटी इक्वल टाइम में इक्वल स्पीड इक्वल रेट से बढ़ रही है। अगर कोई वेलोसिटी इक्वल रेट से बढ़ रही है तो उसका जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन जाएगा और बढ़ता ही जाएगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है, और डिक्रीज भी वो इक्वल अमाउंट में हो रही है, इक्वल रेट से डिक्रीज हो रही है, तो उसका ग्राफ डाउनवर्ड आएगा लेकिन स्ट्रेट लाइन आएगा। ये हो जाता है आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मीन्स हुआ इफ़ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मोर देन द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी से ज़्यादा है तो वो हो गया नेगेटिव एक्सेलरेशन, दैट मीन्स रिटार्डेशन। और जैसे ये वाला है, इसमें क्या है, इनिशियल वेलोसिटी कम है, फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा है, तो ये हो गया पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, ये हो गया आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ, क्योंकि इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है। अब आपका इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, हम पास तीन इक्वेशंस होती हैं मोशन की, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। यहाँ पे v होता है फाइनल वेलोसिटी, u होता है इनिशियल वेलोसिटी, a होता है एक्सेलरेशन, t होता है टाइम, s होता है डिस्टेंस कवर्ड। अब जैसे इस ग्राफ में जाएं तो पहले हम इक्वेशन लेते हैं v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ पर देखें कि a से b जब ग्राफ जा रहा है तो स्ट्रेट लाइन जा रहा है, तो हमने ओ ए मान लिया आपकी इसकी इनिशियल वेलोसिटी मान ली u, बी सी मान ली इसकी फाइनल वेलोसिटी, ओ ए इक्वल्स टू होगा सी डी के, ओ सी और ए डी इसका टाइम हो गया। तो अगर मैं इसका ग्राफ लूँगा तो वो आ जाएगा ए बी इक्वल्स टू बी सी माइनस बी डी, बी सी माइनस सी डी, बी सी माइनस सी डी अपॉन ए डी। ये चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम हो रहा है, तो चेंज इन वेलोसिटी के लिए फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई इसकी बी सी, और माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई इसकी सी डी अपॉन टाइम ए डी या ओ सी। ठीक है, तो ये हो गया आपका v माइनस यू अपॉन टी बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी, तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। नेक्स्ट है आपका s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर मैं इसका एरिया लूँ तो अगर मैं इस ग्राफ को देखूँ तो इसमें एक ट्रेपेजियम बन रहा है और एक रेक्टेंगल बन रहा है। अब ये क्या वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या दिखाता है, डिस्प्लेसमेंट। तो इसका एरिया ऑफ हो जाए एरिया ऑफ ओ ए बी डी बी सी, ओ एरिया ऑफ ओ ए बी सी इक्वल्स टू हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी। यहाँ पे बी सी नहीं आएगा, डी सी आएगा, वो मिसप्रिंट हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी होगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है आपका, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ हो गई इसकी ओ सी और ब्रेथ हो गई इसकी ओ ए, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस हो गया इसका ए डी और हाइट हो गई इसकी बी डी। तो ओ ए की जगह आपका आ गया वी, ओ ए की जगह आपका आ गया टी, सॉरी ओ ए की जगह आपका आ गया यू
ओ सी की जगह आपका आ गया टी, 1/2 ए डी की जगह आपका आ गया टी, और बी डी की जगह आ जाएगा आपका वी माइनस यू। और वी माइनस यू हमने पिछली लास्ट इक्वेशन में पढ़ा था कि वी माइनस यू होता है ए टी के इक्वल, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। अब ये अगर मैं देखूं तो रेक्टेंगल और ट्राइंगल का जब हम मिक्स कंपोजिशन करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो एक ट्रेपेजियम शेप बनाता है। तो मैं देखूं तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी सी हो जाएगा। तो ट्रेपेजियम का हमें फॉर्मूला पता है एरिया का, सम ऑफ पैरेलल साइड्स अपॉन 2 इंटू हाइट। तो पैरेलल साइड्स है यहाँ पे ओ ए और बी सी, और हाइट हो गई इनकी ए डी, तो ये हो जाएगा ओ ए प्लस बी सी अपॉन 2 इंटू ए डी। तो ओ ए हो गया आपका यू, डी और बी सी हो गया आपका वी, और इंटू टी। लेकिन इस फॉर्मूले में टी की ज़रूरत नहीं है, तो हमने लास्ट इक्वेशन से पढ़ा था कि टी इक्वल्स टू होता है वी माइनस यू अपॉन ए। तो टी की जगह लिख देंगे वी माइनस यू अपॉन ए, तो वी प्लस यू वी माइनस यू अपॉन 2a एस हो गया यहाँ पर ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2a एस। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर घूमता है तो उसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन। लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलेशन मोशन का मीन्स होता है इफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, इफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ विद इक्वल स्पीड बट वेरिएबल वेलोसिटी। यहाँ पर स्पीड इक्वल है लेकिन वेलोसिटी क्या है? वेरिएबल है, तो इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या है? स्पीड वेरिएबल है, सॉरी स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी वेरिएबल है। वेलोसिटी वेरिएबल का मतलब हुआ उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। तो जब वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज हो रही हो दैट मीन्स वो उसमें एक्सेलरेशन हो रहा है। तो एक्सेलरेशन का मतलब हुआ कि ये जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो ये कैसा होता है? एक्सेलरेटेड मोशन होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड है या नहीं है, तो ये एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है। इसके अलावा जब आपने देखा हो जब आप किसी का वेट कर रहे हो तो वो आपका मोशन होता है, उस टाइप का मोशन होता है स्टेशनरी मोशन। स्टेशनरी मोशन का मीन्स होता है इफ़ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद टाइम। अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है लेकिन सराउंडिंग्स कंटिन्यूसली चेंज हो रहे हैं तो उसको आप बोलोगे स्टेशनरी मोशन। और उसका ग्राफ होता है, उसका ग्राफ हमेशा पैरेलल टू टाइम एक्सिस होता है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। ये आपका चैप्टर ओवर हो गया।